क्योंकि माफी तो उसको दी जाती है जिसने कोई अपराध किया हो। 2000 से लेकर 2017 तक 45 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार को जगाने के लिए आए, एक गूंगी बोली सरकार। जिस किसान ने दिन रात मेहनत करके अपना पेट खाली रख के पूरे देश के अनाज के भंडार भरने का काम किया है, इसलिए इस किसान को कर्ज माफी नहीं, इस किसान को कर्ज मुक्ति चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए एक बार फिर दिल्ली कूद चुके हैं भारत के सारे किसान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और आप यदि तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो ये प्रीमिसेस आज पूरी तरीके से किसानों से भरी पड़ी है। आज से कुछ सालों पहले आपने देखा था दिल्ली कूच किया था किसानों ने, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, साल भर इन्होंने बॉर्डर पे बिताए अपनी जिंदगी के दिन, और आज एक बार फिर ये लोग दिल्ली में वापस आ चुके हैं अपनी मांगों को लेके। सत श्री अकाल सर, की हाल चाल है? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। इस बार क्या मांगे लेके आए हैं? ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, 2020 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। लेकिन सरकार ने उस वक्त अपने पैर पीछे किए थे, किसानों के आगे झुकी थी। किसानों ने लगातार कहा था कि सरकार को हमारी जायज मांगों के लिए पीछे झुकना ही पड़ा। अब तक वो मांगे आप लोगों की पूरी नहीं हो पाई। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं देता। मतलब भगवंत मान, आम आदमी पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर किसानों के साथ अत्याचार ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ वापस कर दो। लेकिन अभी वर्तमान में जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो भी कहते हैं एमएसपी की गारंटी हमने किसानों को दी, किसान निधि जो है वो फंड जो है लगातार किसानों के अकाउंट में आ रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪੱਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ 85-8600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ऐसे साडा हक मांगते भीख नहीं मांगते। हाँ, हाँ। तो जैसे पहले आप लोग लगभग 1 साल बॉर्डरों पे बैठे, कई तरह की तस्वीरें सामने आई, किसानों के ऊपर भी आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप का खेल चला, तो इस बार क्या तैयारी करके आए हैं? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਦਗੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਹੋਏ।
तो घर वालों को बता के आए हैं कि कितना भी टाइम लग सकता है इस बार भी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। आपका क्या नाम है? सत श्री अकाल जी। बाप सिंह क्या आपके क्या अपनी मांगे हैं या सभी की मंगे एक ही मांगी है? हाँ, हाँ। लेकिन सरकार कहती है एमएसपी की गारंटी दी किसानों को, किसान सम्मान निधि योजना जो लेके आई किसानों को सम्मान के लिए हर महीने किश्तें भी जा रही है। मोदी जी खुद अपने हाथों से जो फंड है वो अकाउंट्स में डालते हैं किसानों के। साल का 6000 दिंदा है। 6000 में तो जवाब भी नहीं करता। मोदी जी साडी मूंगी हुण 2500 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ 10-11000 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਲਾਏਗੀ 120 रुपये किलो देगा वही मूंगी है। लेकिन कह रहे फसलों के लिए देखिए सिंचाई के लिए उपकरण लगा रहे हैं किसानों के खेतों में, उचित गुणवत्ता वाले बीज प्रोवाइड करा रही है सरकार। नहीं कुछ नहीं झूठी बोल रही है। हाँ आपका क्या नाम है सर? जगदीश कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। एक आरोप लगता था कि जो किसानों का आंदोलन है वो केवल पंजाब के किसान ही उठ के आते हैं, आप हरियाणा से आए हैं, तो आपके साथ और कितने लोग आए हैं? होंगे 1000 आदमी जी। 1000 आदमी। यही मांगे लेके आए एमएसपी की गारंटी। ये है जी लेकिन गारंटी दे दो हम लोग कुछ चंदा है गारंटी दे दो हमने बहुत चंदा नहीं कुछ। लेकिन वो जो 3 काले कानून थे पहले आए थे, सरकार उस पे अपने पैर पीछे कर चुकी थी और कहा भी था कि किसान भाइयों को समझाने में कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है। चलो वो तो चूक होगी जी सर। वो तो कर दी उन्हें कानून एमसी का मतलब वो तो महाराज मोर ला उस पर और उन्हें जो करनी थी तो हमारे किसान के 1 एकड़ पे इन्हें बड़े उन्हें तो करे यो 50-60 लाख रुपए और हम किसान करावे तो मात्र 50-1 लाख रुपए सिर्फ क्या करना हमके हमने बने के जांच को जरूरत नहीं पड़े जो करे ऐड दिए हुए हैं 30 पैसे किसान को क्या चंदन जावा हमने क्या जरूरत बने के जान की फिर किसान की जो हमारी डीसी रेट है वो 20 लाख का है किला जी हमारा 10 लाख कर दो 1 किलो पे हम जान की जरूरत नहीं 30 पैसे का जो अर्ध की दुकान का है वैसे हमारा कर दो। ये कानून तो माव है किसान कभी भी कर्ज में नहीं आ सकता ऐसे कानून को लागू हो जाते थे। ये दुआ हमारी जी एमएसपी की। तो आप लोगों को जो कहा है सरकार कहती है जैसे एमएसपी की गारंटी, उचित गुणवत्ता वाले बीज। हाँ मैं एक सरसों का एकड़ लेके जिसमें आ गई 25 मन 30 मन वह पूरी ले हमारी उसको हम लोग वापिस क्यों घुमाया है उसको पूरी ले 6000 का रेट एमसी का वो ले हम कोई हुआ नहीं वो 10 मन दाने बच गया हमको वापिस कर ले फिरेंगे उन्हें। एक जो आरोप लगता था कि किसान केवल क्या पंजाब के ही परेशान है और आज आप सब जगह से एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, एक खालिस्तानी तक का टैग लगा था किसान प्रोटेस्टर्स के ऊपर कि ये खालिस्तानी है, खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, मजे काटने आए हैं धरना स्थल पर। एक बात बताओ खालिस्तानी बताओ ज्ञानी जियान है खालिस्तानी होने था वो मोदी भी नहीं कुर्सी पे बैठे पावर कोई खालिस्तानी नहीं है। देखिए आप में से कोई इस बात का बुरा मत मानिएगा कहीं गुस्सा हो जाए क्योंकि ये उस वक्त की बातें थी जब 1 साल किसानों ने बॉर्डरों पे बिताए थे और उनके ऊपर भी कई तरह की बातें उड़ती हुई नजर आई थी। ये तो हमारे तो जी सर। आपका क्या नाम है वीर जी? महिमा सिंह, कहाँ से आए हैं? फरीदकोट जिला जी। अच्छा तो इस बार की क्या मांगे हैं? मांगे वही है या फिर अब कुछ बदलाव? ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਫੇਰ ਆਏ ਆ। लगभग 2 साल बीत गए हैं तो सरकार ने बीच में कोई प्रयास नहीं किया कि ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਟਰੇਲੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ कर नहीं रहे मान नहीं रहा मोदी है जी। अच्छा अभी भी आप लोग आए थे हाल फिलहाल में जब बॉर्डर कूच करने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे कि ये किसान है जो जी वैगन में आ रहे हैं, ये किसान है जो रोज रात को दारू पार्टी करते नजर आ रहे हैं, देश का किसान ऐसा है? सब झूठ है ये
ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਲੇ ਝੰਡੇ ਆ। ਟਰੇਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਲ ਲੀਆਂ, ਟਰੇਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਖਨੌਰੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੇਰ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਏ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਨੌਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਟਰੇਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, सिलेंडर ਇਹਨਾਂ ने ਚੱਕ ਲਏ। वो पंजाब सरकार ने काम गलत कराए सारे। पंजाब में आप लोग कितने दिन बैठे थे ऐसे धरने के लिए? एक साल पंजाब में भी 13 महीने बैठे हैं। 1 साल 2 महीने लग गए सी। पंजाब में 1 साल बैठे, टिकरी बॉर्डर पे 1 साल बैठे आप लोग, और उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सुनवाई करवा के उठा गए। आज सुनवाई करा के उठाओगे। आपका क्या नाम है सर? सुखमंदर सिंह है जी। इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों ने धरने दिए हैं, कई 1 साल, कई 2 साल। इस बार क्या तैयारी करके आए हैं? तैयारी हमारी तो देख लो, कोई झंडे हैं तो मांग मानने के लिए सरकार को बोल रहे हैं अभी साडा ये लागू करो। अब तो ना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ऐसी लड़ाई के लिए नहीं, कोई बैठने के लिए नहीं आए, सरकार को जगाने के लिए आए हैं। एक गूंगी बोली सरकार हमारी मंगा मान नहीं रही, उसको जगाने के लिए आए हैं। इतना कट किया। कै स्टेटों को कहते कल पंजाब मांग रहा है, देख लो कितनी स्टेट है, यूपी है, आंध्रा है, सारे आए हैं। राजस्थान हरियाणा हमारे साथ है। लेकिन मोदी जी कहते सब चंगा सी। जे चंगा हुंदा सी मान लेंदे, जे चंगा हुंदा सी कहंदे चंगा है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪਾਗਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। पिछली बार बातें उठी थी कि ये कोई किसान नहीं है, ये विपक्षियों की साजिश है, बाहर कनाडा से फंडिंग आ रही है, ये बैठ के देश का दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। सब ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। 1-1 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਰੋਲ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। सब बकवास है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर किसान इससे पहले भी एकजुट हुए थे। लगभग 4 साल से किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है एमएसपी को लेकर बीच बीच में उठता रहता है। कभी ये पंजाब में बैठते हैं, कभी ये दिल्ली कूच करके आते हैं, और इनके ऊपर भी कई तरह की ट्रोलिंग भी होती है। आज एक बार फिर किसान जो है वो जंतर मंतर पर एकजुट हुए हैं, और बताया जा रहा है कि इस बार भारत के हर प्रांत से यहाँ पर किसान आए हैं। मुद्दा जो है वो एमएसपी है, जो पिछले 4 साल से एमएसपी का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है किसानों के द्वारा। अब देखने की बात ये रहेगी कि ये धरना आगे कहाँ तक जाएगा। पहले की भांति डेरे लगेंगे, या इस बार आज आए हैं तो आज ही चले जाएंगे। सरकार इनकी मांगों पे कब तक सुनवाई करेगी, कागजी कार्रवाई के बजाय, जब इनकी मांगे हकीकत में पूरी होती नजर आएगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।